Hello and welcome to EduBridge IAS. I am Vishal Singh, and in today's session we are going to discuss some important observations made by the Supreme Court of India with respect to Facebook and other social media platforms. This topic is important for your GS mains paper 2, and because it also involves a discussion on topics such as the right to privacy and free speech, it is also relevant for your GS mains paper 4 and essay paper. Before we discuss this topic in greater detail, please check out our comprehensive current affairs program beginning from the 1st of August 2021. All relevant links and details are given in the description below the video. Let us first take a look at the background in which the Supreme Court made these observations. To investigate the 2020 Delhi riots, Delhi's Legislative Assembly has established a Peace and Harmony Committee. This committee had summoned Facebook India's Vice President and MD, Mr. Ajit Mohan, to appear before it and explain the role of Facebook in spreading hate messages during these unfortunate riots. Facebook had filed a plea with the Supreme Court to dismiss these summons, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फेसबुक की इस प्ली को ही डिसमिस कर दिया एंड साथ में ये भी बोला कि दिल्ली की असेंबली के पास पूरा अधिकार है कि इन राइट से के एसोसिएशन में अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करे और इसके लिए किसी को भी अपने सामने बुला सकता है. It also made some specific observations regarding social media platforms in general and Facebook in particular. In one of its observations, the Supreme Court highlighted the disruptive role of social media platforms and emphasized the need for greater accountability. Facebook किसी double edged sword की तरह है. On the one hand, it enables free speech, while on the other, it has become an agent of disruption by harboring disruptive messages, voices, and ideologies which can disturb the peace and harmony of the society. Thus, it is important to have some checks and balances in place. Further, Facebook और इस तरह के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी सोसाइटी में एक इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ पावर एक्सरसाइज करते हैं. दे कैन डू दिस बिकॉज ऑफ देयर रोल एज इनएक्सट्रिकेबल पोर्शंस in the modern public discourse. आपने ये सुना होगा that with great power comes great responsibility. Thus, it is important to hold such platforms accountable. और इनकी accountability कौन establish करेगा? Those who have given them this power, that is we, the people. Thus, the Delhi Assembly is well within its right to hold Facebook accountable. Further, touching upon democratic values, the Supreme Court clearly stated that digital platforms and intermediaries such as Facebook are subservient to democratic values and the greater public good. In order to safeguard our democratic values, accountability is necessary. This becomes all the more important in light of the unprecedented degree of influence wielded by such platforms. The court also made some incisive observations about the shifting picture of the electoral process in light of social media. It held that elections and the voting process are at the very foundation of a democracy, and presently they stand threatened due to social media manipulation. Further, Supreme Court ने यह ऑब्जर्व किया कि इस तरह का सोशल मीडिया मैनिपुलेशन स्टेबल सोसाइटीज़ को भी वर्टिकली डिवाइड करके उनको डीस्टेबलाइज कर सकता है. आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा होगा कि किसी इशू, पर्सनालिटी, आइडिया या आइडियोलॉजी को लेकर के लोग अपने आप को दो अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड इन दोनों टीम्स के बीच में कभी भी डिस्कोर्स सिविलाइज नहीं होता है. ये हमेशा शाउटिंग मैचेस में एंगेज करते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वेरी डिज़ाइन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ये इस तरह के कमेंट्स को इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं जो कि थोड़े भड़काऊ नेचर के हों, विच कैन एलिसिट एन इम्पैशन्ड रिस्पॉन्स नॉट ओनली फ्रॉम देयर साइड बट ऑल्सो फ्रॉम द अपोजिंग साइड. कि किस कमेंट को सबसे ज़्यादा
व्यूज़ मिल रहे हैं, किस पोस्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, उस पर रिस्पॉन्सेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा पोस्ट ट्रेंड हो रहा है, रीट्वीट कितनी बार किया जा रहा है, कितने लाइक्स या डिसलाइक्स आ रहे हैं, ये डिटरमिन करता है कि आपका सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन के ऊपर प्रेजेंस सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। तो एक तरह से आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप इस तरह के पोस्ट और कमेंट्स करें जो लोगों के पैशंस को इन्फ्लेम करें, रादर दैन उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को टिकल करें, राइट। अगर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली साउंड हों, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ और एंगेजमेंट ना मिले। लेकिन भड़काऊ पोस्ट्स दे ऑफन ट्रेंड टू डोमिनेट द एंटायर कॉन्वर्सेशन, एंड ये कॉन्वर्सेशन को, पब्लिक डिस्कोर्स को पॉइजन कर देते हैं और शैलो कर देते हैं। फर्दर इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो टीम्स हैं इनमें ट्राइबलिज्म की टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है। ट्राइबलिज्म का मतलब क्या होता है कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे को अपने से डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशन में व्यू करती हैं। एक साइड को ये लगता है कि देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर वर्ल्ड व्यू इज़ एब्सोल्युटली वर्चुअस एंड द अपोजिंग साइड इज़ इविल इनकारनेट। तो अपने व्यूज़ में, अपने वर्ल्ड व्यू में वो और भी ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं और इंट्रेंच्ड हो जाते हैं, एंड दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते हैं। फर्दर, even if a cogent argument is presented which dismantles their worldview or their point of view, तो वो उसको डिसक्रेडिट कर देंगे या डिसरिगार्ड कर देंगे। वाई? बिकॉज दैट वर्ल्ड व्यू और दैट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी आइडेंटिटी के कोर का हिस्सा बन चुका है। दे हैव बिकम सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट लीविंग इट will present an existential crisis for them, and this robs them of their ability to think critically. Critical thinking lies at the very core of the democratic process. Elections होते क्या हैं? These are periodic exercises of your informed choice through which you choose representatives who are going to govern you, right? लेकिन अगर आप क्रिटिकली अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पा रहे हैं, देन द इलेक्टरल प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट को या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते हैं, ये ब्रह्मवाणी मान लेते हैं, उनको वेरीफाई किए बिना बिल्कुल सच मान लेते हैं, and as a result of this their informed choice once again becomes compromised. Thus the electoral process can be compromised due to social media manipulation. The Supreme Court also talked about post-truth in the context of Brexit and the US presidential elections. अब ये post-truth क्या है? It refers to an era where feelings become more important than facts and opinions become more important than reality. एक नैरेटिव को फुलफिल करने के लिए कुछ ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स एक ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। What are these alternative facts? They are nothing but outright lies. And this can be quite dangerous because it can compromise objective reality. And reality की पिक्चर को ये ऑल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का कोई स्टेट है जहाँ पे कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम काफ़ी डीप सीटेड है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट सर्कुलेट किया जा रहा है दैट ईद के दिन किसी इलाके में ज़्यादा बिजली सप्लाई हो रही है और दिवाली के दिन कम। अगर आपने इसको तुरंत फैक्ट चेक करके डिस्क्रेडिट नहीं किया, सो दिस इंफॉर्मेशन कैन लिंगर इन द पब्लिक मेमोरी, एंड जो कम्युनलिज्म का इशू है इसको और ज़्यादा डीपन कर सकती है। वाई सोशल मीडिया टू ब्लेम फॉर दिस? क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं ये एक चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं, द शेयर वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड एंड सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। इनको ये पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे पोस्ट्स होंगे, इतना ज़्यादा डेटा होगा कि आप हर एक फैक्ट को चेक नहीं कर सकते हैं,
and there are some alternative facts which are going to slip through. And thus, it has become increasingly important to reaffirm objective reality based on real facts as opposed to an alternate reality based on alternate facts. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है that Facebook and other social media intermediaries are large, wealthy, and extremely powerful multinational corporations whose influence extends across borders. Worldwide, Facebook has more than 285 crore monthly active users. In India alone, it has more than 27 crore such users. Thus, it has the ability to shape public opinion in an unprecedented manner. Now, the Supreme Court holds that with such great power must also come great responsibility, which has to be ensured through accountability. The court also talked about the information explosion in the digital age. अब मान लीजिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ट्रेन्स के अराइवल और डिपार्चर का एक सेट टाइम टेबल होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए, सो कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है, उसके अराइवल का टाइम क्या है, डिपार्चर का टाइम क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कौन से स्टॉप्स पे रुकेगी, ये ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन आवर डिजिटल एज. एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है. विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सोर्स, क्या डेस्टिनेशन है, what are the pathways through which it is spreading, whether that information is truthful or not, whether the source is verified or not, ये ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दीज आर सम अदर इशूज़ which have arisen out of this so-called information explosion in the digital age. The court has also made very powerful observations regarding extremist misinformation through social media. It has stated that while social media on the one hand is enhancing equal and open dialogue between citizens and policymakers, on the other hand, it has become a tool in the hands of various interest groups who have recognized its disruptive potential. This results in a paradoxical outcome where extremists' views are peddled into the mainstream, thereby spreading misinformation. Extremist views जो अभी तक fringes में located थे, वो मेन स्ट्रीम हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से. एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ यूजुअली लेंड देमसेल्व्स टू वायलेंट टेंडेंसीज़. अब ये वायलेंट टेंडेंसीज़ अगर मेन स्ट्रीम हो जाती हैं, सो इट कैन स्पेल डूम टू द सोसाइटी एट लार्ज. द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेव अ स्टर्न रिमाइंडर टू फेसबुक अबाउट इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. It pointed out that Facebook had failed to prevent the crescendo of misinformation and posts against ethnic minorities in Myanmar, which resulted in large-scale violence against them and ethnic cleansing. Now, this was something that Facebook had to publicly acknowledge and apologize for. Drawing a parallel, the court reminded Facebook of its responsibility to prevent such misinformation leading to violence in India. So what has been the position of Facebook so far with regards to the generation, control and modulation of information that is hosted on it? It has maintained that it is simply an open platform where third-party information can be posted. Thus, it has absolved itself of all responsibility when it's come to the generation, control and modulation of such information. However, such a position has been found to be unacceptable by the British Parliament. British Parliament has said that Facebook must be responsible for the information that it hosts. The Supreme Court of India has also taken a similar position. उन्होंने भी यही बात बोली है कि इस simplistic definition of an open platform के पीछे Facebook छुप नहीं सकता और अपनी responsibilities से हाथ नहीं धो सकता है. It has to take responsibility for the information that is hosted and shared on its platform. अब अगर आप फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया जायंट्स की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पैसा कैसे कमाते हैं. देयर एंटायर रेवेन्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन एड रेवेन्यू.
100% इनका पूरा का पूरा इनकम एड रेवेन्यू से कंपोज होता है। ठीक है, एड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कैसे करा जाएगा? बाय इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम ऑफ द यूज़र। और यूज़र के स्क्रीन टाइम को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए? गिव द यूज़र टेलर मेड कॉन्टेंट विच रीइंफोर्सेस हिज ओन वर्ल्ड व्यू एंड एम्पलीफाइज हिज बिलीव्स। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फेसबुक या यूट्यूब पे आपने कोई पोस्ट देखा या फिर कोई वीडियो देखा, तो सिमिलर टॉपिक पे आपको और कंटेंट सजेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वाइल्ड लाइफ पे या हिस्ट्री पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा है, तो आपके होम पेज पर अब वाइल्ड लाइफ पे या हिस्ट्री पे और ज़्यादा कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। हाउ इज़ दिस हैपनिंग? This is happening because YouTube or Facebook uses an algorithm to learn about your behavior. वो आपकी चॉइसेस को, लाइक्स को, डिसलाइक्स को ट्रैक करके आपका एक यूज़र प्रोफाइल बनाते हैं। दे आर एबल टू प्रिडिक्ट कि आपको अगर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट दिया जाए तो प्रॉब्ली आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड दस देयर एड रेवेन्यू वुड इंक्रीज़। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा वीडियो देखा या फिर कोई ऐसा पोस्ट पढ़ा जिसने आपके वर्ल्ड व्यू को थोड़ा ऑल्टर किया है, राइट, एंड इट हैज़ ऑल्टर्ड इट इन अ डायरेक्शन विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। अब धीरे धीरे क्या होगा कि एल्गोरिदम ने आपके बिहेवियर को ट्रैक कर लिया है एंड इट इज़ गोइंग टू सजेस्ट कंटेंट विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन इट्स एक्सट्रीमिज्म एंड इससे धीरे धीरे आपके व्यूज़ ऑल्टर होते जा रहे हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफिकली असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स in this case for the increasing extremism within the society, which can often lead to violence. The Supreme Court has also taken into account the ability of Facebook to prune content. Facebook ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एडमिट किया that in the second quarter of 2020, केवल 3 महीने के पीरियड में they have removed more than 2.25 crore pieces of content which they categorized as hate speech. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये डिटरमिन कौन करेगा कि कौन सा कंटेंट हेट स्पीच होना चाहिए और कौन सा कंटेंट फ्री स्पीच के लॉज के अंडर प्रोटेक्ट होना चाहिए। ट्रेडिशनली दिस हैज़ बिन डन बाय द जुडिशरी और बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन अब फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया जायंट्स ये डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। एंड ये ऑपरेट किस तरह से कर रहे हैं? आर दे ऑपरेटिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर? Are they responsible to the people? No, they are bearing no responsibility, no accountability. They are quite intransparent, काफ़ी ओपेक तरह से ये काम करते हैं। एंड एट टाइम्स हमने ये देखा है कि इनका ये जो डिटर्मिनेशन होता है दैट इज़ क्वाइट आर्बिट्रेरी। इस सिमिलर कंटेंट पे मान लीजिए 2 तरह के वीडियोस बने हुए हैं, एक को ये ब्लॉक कर देंगे लेकिन दूसरे को ब्लॉक नहीं करते हैं। देयरफॉर their behavior has been brought under question not only in India but elsewhere also. फ्री स्पीच का फ़ायदा होता है एक बहुत बड़ा, दैट इट क्रिएट्स अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़। जो आइडियाज़ लोगों को पसंद आते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं, जो आइडियाज़ नहीं पसंद आते हैं दे बिकम इररिलेवेंट। लेकिन फेसबुक यहाँ पे एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। वो कुछ आइडियाज़ को मार्केट प्लेस में आने से पहले ही रोक देता है। So often people are not allowed the opportunity to familiarize themselves with ideas which they might find attractive. ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है that these social media giants operate as invisible bureaucracies which have no accountability to the people, and it has taken an adverse position on the degree of control exercised by them over content which is available on their platform. अब हम अगर फेसबुक की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ मल्टीनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है, यूएस में भी ऑपरेट कर रहा है, दोनों जगह पे सिमिलर रोल्स भी परफॉर्म करता है, दोनों जगह पे इसका बिजनेस मॉडल भी सेम है। लेकिन अपने आप को इन्होंने दोनों जुरिस्डिक्शंस में
अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। यूएस में इन्होंने बोला है दैट फेसबुक इज़ अ पब्लिशर and because of that they enjoy the protections under the free speech laws in the US. So their speech is protected, but at the same time they are also responsible for the content that they carry, because अगर ये अनट्रूथफुल या फिर मिसलीडिंग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल. However, in India, despite performing the same function, they have simply categorized themselves as a social media platform. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कंटेंट को लेकर के. तो ये सिंपली ऐसा है कि एक दीवार है, लोग अपने अपने पैम्फलेट वहाँ पे ला करके चिपका दे रहे हैं. तो दीवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ देयर पोजिशन इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट दिस डाइकोटमी एंड इट हैज़ सेड कि अगर आप दोनों जुरिस्डिक्शंस में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेशंस भी सेम होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी कि आप एक जुरिस्डिक्शन में सिंपली एक ओपन प्लेटफॉर्म है और दूसरे जुरिस्डिक्शन में एक पब्लिशर है. The Supreme Court has also observed that these social media platforms often utilize business models that are highly intrusive to the privacy of their users. ये प्लेटफॉर्म्स यूज़र डेटा को खुद तो यूज़ करते ही हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टूल्स डेवलप करने के लिए. कई बार ऐसा भी सामने आया है दैट दीज प्लेटफॉर्म्स सेल द यूज़र डेटा टू थर्ड पार्टी प्लेयर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूज़र्स or obtaining their consent. Case in point, the Facebook Cambridge Analytica data scandal. यहाँ पे हुआ क्या? फेसबुक ने अपने यूज़र्स को बिना बताए मिलियंस ऑफ यूज़र्स के डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेज दिया, विच यूज दिस डेटा टू क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स ऑफ द यूज़र्स so that they can be sent custom made political advertising. And this led to the rise of polarization in the British and American societies in the backdrop of the Brexit referendum and the 2016 US presidential election respectively. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर्स को बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया है. हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की पावर दिल्ली असेंबली के पास ना हो, लेकिन पीस और हार्मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है एंड इसको प्रिजर्व करने के लिए या फिर इसके ब्रीचेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये अपने किसी मेंबर या फिर किसी आउटसाइडर की अटेंडेंस को कंपेल कर सकते हैं. सो इट हैज़ upheld the summons sent by the assembly to the vice president and MD of Facebook India. फाइनली GS मेंस पेपर 2 का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. द वर्ड लिमिट इज 250 वर्ड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू सून विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, बी वेल and Jai Hind.